औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्लास 9 की मैथमेटिक्स इन बोर्ड के हवाले से लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से पढ़ेंगे। और इसमें आज जो हमारा टॉपिक होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा टॉपिक है। एक्सरसाइज नंबर 1.5 पे बेस करती है। और आज के लेक्चर में, आज की क्लास में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसके हवाले से पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ें कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ये लाजिम है, ज़रूरी है कि हमें पहले नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारे नंबर से आप वाकिफ़ हैं और जो इम्पोर्टेंट नंबर्स जो हमारे पास होते हैं उनके एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपके जहन में ये बात आ जाए कि कौन कौन से नंबर हमारे पास होते हैं। आप जानते हैं कि हमारे पास एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 2 3 4 सो ऑन चलते हैं। देन वी हैव सेट ऑफ होल नंबर्स which is basically natural number, and it includes zero also, 0 1 2 3. Then we have set of integers. Integers are represented by z and they contain the whole number both in positive and negative values. Then we have set of positive prime numbers. Prime numbers are those numbers which are divisible by themselves only, and 1 2 3 5 7 are called prime numbers. And then we have set of odd numbers. The numbers which are not divisible by 2 are called odd numbers. Then we have set of even numbers. Even numbers are those numbers which are divisible by 2. Then we have set of rational numbers. Rational numbers are those numbers which can be represented in form of fraction. P upon Q, X is this is read as Q is a set of X, and X is equal to P upon Q, where P and Q belongs to Z and Q is not equal to 0. Remember that all the integers and all the numbers given above are part of rational numbers. Then there are some other numbers which are called irrational numbers, and these are the numbers which cannot be written in form of P upon Q. It means that we cannot write it in the fraction form. We cannot write them in the fraction form. Usually the roots, radicals are the set of irrational numbers. And finally, we have set of real numbers. And real numbers are those numbers which are the combination of rational and irrational numbers. In fact, if we discuss the real number, that real number includes all the numbers given above. The hierarchy of this number can be represented as follows. We can represent the real number as the real number is divided into two parts, the rational number and the irrational number. Then the rational numbers are further classified into two types, the integers and the non-integers, which are rational number. Then integers are further divided into even integers, whole numbers, and odd integers. And the whole numbers are divided into natural numbers, and natural numbers are subdivided into prime numbers. So these are the numbers you have came across so far. अब तक जितने नंबरों के बारे में आज तक आपने पढ़ा है, वो तमाम के तमाम जो आपके नंबर है, अब तक जितने नंबरों के बारे में आपने पढ़ा है, वो तमाम के तमाम जो नंबर आपके हैं, वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, जिसको कि हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब रियल नंबर होते हैं तो इसका कोई रियल का इन्वर्ट वर्ड होता है इमेजिनरी, देन वी हैव इमेजिनरी नंबर एज वेल। जब रियल नंबर हमारे पास होते हैं, जितने भी नंबर आपने पढ़े, these all are the real number. We have imaginary numbers too. Then what are imaginary numbers? कि imaginary number क्या होते हैं? We know that the square of every real number is positive. आप ये बात जानते हैं, पहले आपने सवालात किए हैं, जब भी किसी नंबर को स्क्वायर किया जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए कि जब नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट अ पॉजिटिव वैल्यू। तो हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू हमें जो हासिल होती है। Imaginary number are the numbers when squared it gives negative result. एक ऐसा नंबर जिसको जब स्क्वायर किया जाए तो उसका आंसर क्या आ जाए? उसका आंसर नेगेटिव आ जाए। रियल नंबर का जब भी स्क्वायर करेंगे तो आंसर विल बी पॉजिटिव, मगर जब इमेजिनरी नंबर को स्क्वायर किया जाएगा तो इट विल गिव अ नेगेटिव रिजल्ट। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, अगर माइनस अंडर द रूट -25 को अगर हम क्या करें मेरे बेटा, स्क्वायर करेंगे
तो आप क्या देखते हैं मेरे बेटा कि जब आपके पास जो है वो स्क्वायर से रूट को हम क्या करेंगे, ये मेरे बेटा आपके पास चंदा रूट है, ये आपके पास स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड द रिजल्ट विल बिकम -25 which is a negative number, although we have squared a value and we have getting a negative number. In other words, imaginary numbers are defined as the square root of a negative number. हम जैसे भी कह सकते हैं where it does not have a definite value. जब भी किसी नेगेटिव नंबर का हम क्या करेंगे, रूट निकालेंगे, तो वी विल गेट अ इमेजिनरी नंबर, हमें एक इमेजिनरी नंबर हासिल होगा. It is most commonly written in the form of a real number multiplied by an imaginary unit called iota. जब भी किसी इमेजिनरी नंबर को लिखा जाएगा तो उसके साथ एक तो रियल नंबर होगा, 2 3 4 5 कोई भी नंबर होंगे, एंड along with that we have write a unit word iota. Then what is iota? This is written I and it is read as iota. इसको iota read करते हैं. Let us take an example 5 iota. This is 5, this is I. I stands for iota here. Where 5 is the real number and iota is the imaginary unit. 5 is the real number, iota is the imaginary unit. When this number 5 iota is squared, we get a negative result as -25. जब इस नंबर को स्क्वायर करेंगे तो विल गेट अ नेगेटिव वैल्यू दैट इज -25 बिकॉज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1. जो आयोटा है जब इसका स्क्वायर करते हैं तो -1 आता है. दिस मींस दैट आयोटा इज इक्वल टू, इट मींस दैट आयोटा इज इक्वल टू अंडर द रूट -1. जो अंडर द रूट -1 है, इस अंडर द रूट -1 का नाम आयोटा होता है. ये बात आपने ध्यान में रखनी है, पहली बात. और दूसरी बात जो आपने ध्यान में रखनी है कि आयोटा का स्क्वायर कहीं भी आएगा तो आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है. आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, -1 हमारे पास होता है. ये बात आपने ध्यान में रखनी है. The notation iota is foundation for all the imaginary numbers. यानी कि जब भी कहीं imaginary number होगा तो उस पे लाजमी तौर पे iota exist करेगा. Whenever we have a negative number, then we definitely have iota along with this. इसके साथ आपके पास लाजमी तौर पे जो है मेरे बेटा वो iota exist करेगा. एग्जाम्पल देख लेते हैं. अंडर द रूट -1 को आयोटा कहते हैं. अगर अंडर द रूट 5 लिखा है तो अंडर द रूट 5 आयोटा होगा. अंदर से माइनस साइन वैनिश कर देंगे, उसकी जगह पर आयोटा लगा देंगे. अंडर द रूट -49 है तो 49 का रूट 7 होगा और जो रूट नेगेटिव साइन थी रूट के अंदर उसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट कर देंगे. और प्योर इमेजिनरी नंबर, ये सब के सब आपके पास इमेजिनरी नंबर हमारे पास होते हैं. तो पहले आपको इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि whenever there's an iota sign which is equivalent to under root -1, it is called an imaginary number.